Good morning to all of you. Only Afif and Murtaja have come so far. Why people want to come late? I don't understand. No traffic, no jhanjat, no bus ka line. Still they do not come in time. Okay, फटाफट आओ सब लोग. Okay, still only 6 of you have come. Okay. So let me just revise once again. Our aim was to determine internal resistance of a cell using potentiometer. ये cell है of EMF E1 whose internal resistance छोटा r is to be determined. सबसे पहले एक लाइन मैंने बताई थी कि if this key is kept open, that means this resistance is as good as not in picture. All right. So potential difference between the terminal of the cell is EMF E1. लेकिन अगर और बैलेंसिंग लेंथ विल बी L1. अगर ये रेजिस्टेंस नहीं है पिक्चर में तो बैलेंसिंग लेंथ विल बी L1. If close the key, current starts flowing, then potential difference across the EMF will be V and not E, and balancing length will be L2, not L1. कभी भी रेजिस्टेंस पिक्चर में है और करंट फ्लो हो रहा है रेजिस्टेंस से तो इट इज L2 not L1. वो ध्यान रखना. ऑलराइट. L1 कब होता है? When the cell is in open circuit, current is not flowing. So with this idea, सबसे पहले jockeys capture the two ends of the wire. Deflection in the galvanometer are checked. It must give deflection on both sides of 0. If not, adjust the rheostat. Adjust the rheostat. Now jockeys tapped at different points on the wire. First K1 is kept open so that no current flows, and therefore potential difference across the terminal क्या होगा बोलो? अगर एक की K1 open है तो potential difference क्या होगा? E1 या V? E1. E1 या V? Tell me. E1. It will be E1. All right. So what we do is, मतलब resistance है ही नहीं picture में. It is as good as this circuit does not exist. Only top circuit is there. All right. We find the balance point P1, null point P1, balancing length be L1. Since no current flows through galvanometer, therefore EMF E1 is balanced by fall of potential from A to P1. Therefore E1 is VA P1. But by principle of potentiometer, VA P1 is PG into L1. Therefore E1 is PG into L1. Equation number 1. Now what we do? Anybody can tell me? अब क्या करते हैं हम लोग? अब क्या करते हैं? सबसे पहला काम, close the key K1. Current starts flowing. Now the potential difference is not E1, but it is V. All right. Find the balance point P2. Let the balancing length be L2. Since no current flows through galvanometer, the terminal voltage V is balanced by fall of potential from A to P2. Therefore, V equal to VA P2. But by principle of potentiometer, VA P2 is PG into L2. Therefore, V equal to PG into L2. Equation number 2.
divide 1 by 2. So we get E1 upon V equal to L1 upon L2. Now we know general. By Ohm's law, we already know current I equal to E1 upon R plus छोटा r. छोटा r तो main zero है अपना. Therefore, E1 will be I into बड़ा R plus छोटा r cross multiply किया. And by Ohm's law, we know V equal to IR. Therefore, E1 by V equal to R plus छोटा r upon बड़ा R. I gets cancel. Equation number 4. Equate 3 and 4. If you get 4 and 3, तो ये यहाँ लिखा और ये वहाँ लिखा. फिर हमने क्या किया, इस R को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो R प्लस छोटा r इज कैपिटल R इनटू L1 by L2. इस R को यहाँ से वहाँ ले, तो स्मॉलर इक्वल टू कैपिटल R L1 upon L2 माइनस बड़ो R कॉमन लिया. दैट्स द आंसर. कभी भी मैं पूछूंगा ना, टेल मी फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आपको ये आंसर देना है, कैपिटल R इनटू L1 upon L2 minus 1. मैं बोलूंगा L1 कौन सा लेंथ है, तो बोलने का L1 is that length when the resistance is not connected in the circuit. मैं बोलूंगा L2 कौन सा लेंथ है, तो बोलने का L2 is that length when resistance is connected in circuit. ऑलराइट, दो लेंथ जो है, तो बड़ा लेंथ ऊपर, छोटा लेंथ नीचे, -1 और रेजिस्टेंस. तो इट इज वेरी सिंपल फॉर्मूला. मैंने नोट्स दिया है इसका कि नहीं दिया है? जीतू, ओ जीतू. यस सर. ओके. और कौन कौन नहीं आया? मेरे ख्याल से रोशनी नहीं है, कौनन नहीं है, रोशनी, कौनन, विधि, these are all absent. किसके पास नंबर है इन लोग का? उष्णा भी नहीं है शायद. She's coming. उष्णा, आर यू देयर? She's coming, sir. क्यों इतना लेट? रीजन? Sir, she just woke up. क्या woke up? I don't like this. चलो go through कर लो. If you woke up, just woke up. कौनन, उष्णा, रोशनी. अरे रोशनी क्यों लेट आई? So I'm Roshni? there. No, not there from the start. अभी आई हो क्या? No, she was there. अच्छा, रोशनी फोन लगाओ कौनन को और उष्णा को. और कौन कौन एब्सेंट है? आलोक है, हुसैन दागिना है कि नहीं? हुसैन दागिना. यस सर. ओके. ओम मिस्त्री, ओम मिस्त्री को फोन लगाया जाए. चलो एक बार गो थ्रू करो फटाफट. देन वी स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स. जीतू, ओ जीतू, जीतू. यस सर. प्रॉब्लम 69 तैयार है ना आपके पास? तैयार है. हाँ, तो मैं बोलूंगा तो पढ़ना. एक बार ये बच्चे लोग को गो थ्रू कर लेने दो. वो मैंने टाइम में देखा था ना. हाँ वो तो है. पहले जीता लेते नहीं, वो नहीं है, मैं ऐसा बोल रही. ओके, मिटा लो मिनट्स को. पे तैयार रहो. ओके, 69 रीड करो बेटा. So when a resistance of 12 ohm is connected across a cell, its terminal potential difference is balanced by 120 centimeter length of potentiometer wire. When the resistance of 18 ohm is connected across the same cell, the balance of the length is 150 centimeter.
Find the balancing length when the cell is in open circuit. Also calculate the internal resistance of the cell. ये मैंने जानबूझ के सबसे पहले लिया, सबसे लास्ट में दिया हुआ प्रॉब्लम, लेकिन मैंने सबसे पहले लिया। वो लोग क्या बोलते हैं, जब रेजिस्टेंस 12 ओम था, ये रेजिस्टेंस 12 ओम था, बैलेंसिंग लेंथ थी 120 सेंटीमीटर। जब रेजिस्टेंस 12 के बदले 18 हो गया तो बैलेंसिंग लेंथ होगी 150 सेंटीमीटर। वो लोग बोलते हैं what must be the balancing length when it was in open circuit? Open circuit क्या होता है? Anyone remembers? When it is said to be open circuit? Anyone? Anyone? I told you last time. कि cell is said to be open in circuit when, and then closed circuit when. Anyone remembers? कि एक बार वापस बताऊं? देखो, जब भी करंट विड्रॉ नहीं होता ना सेल से, तो सेल को बोलते हैं ओपन सर्किट में, और जब करंट विड्रॉ करते हैं सेल से, उसको बोलते हैं क्लोज सर्किट में। तो जब रेजिस्टेंस 12 ओम था तो लेंथ कितनी थी? 120। जब रेजिस्टेंस 18 ओम है तो लेंथ कितनी है? 150। तो एनीबॉडी कैन टेल मी L1 कौन सा, L2 कौन सा? L1 L2 कौन सा है बच्चे लोग? बोलो। L1 L2 कौन सा है? अफीफ, अफीफ। Yes, sir. So is it 150, the L1? Which one? So L1, L1 is how much? L1 150. Is it 150 And L2? centimeters L2. and 120 centimeters? Okay. Now let me tell you that answer is wrong. Now I'll tell you once again. जब resistance connected होता है circuit में, तो it is L1 or L2? जब resistance को L1. connect किया है। Remember one thing. When resistance is connected in the circuit, we close the key K1. तब जाके resistance circuit में connect होता है, तब current flow होता है। Alright, वो time पे potential difference is not even, but it is B. Length is L1 or L2? जब यहाँ से करंट फ्लो होता है तो वो टाइम पे लेंथ L1 है कि L2 है? L2. तो फिर ये L2 है दोनों। Even this is L2 in the first case and this is L2 in the second case. And they are saying find the balancing length when no current flows through the circuit. When no current flows through the resistance, open circuit. तो यहाँ पे क्या लिखूं? यहाँ पे क्या लिखूं? L1. That is right. ये अब प्रॉब्लम खत्म हुआ। ये मैंने इसीलिए अभी किया, इसके बाद तुरंत किया, नहीं तो ये समझ में नहीं आता है। ये लोग क्या बोलते हैं, जब रेजिस्टेंस 12 ओम था तो बैलेंसिंग लेंथ L2 ओनली, L2 वाज 120 सेंटीमीटर। जब रेजिस्टेंस 18 ओम है तो बैलेंसिंग लेंथ बिकम 150, L2 ओनली, क्योंकि L2 is that length when resistance is connected in the circuit. L1 is that length when it is an open circuit, current is not flowing through resistance. Alright, now we start solving the problem using the formula. चलो, what is small r का formula? Small r का formula है capital R into L1 upon L2 minus 1. Therefore, small r equal to 12 L1 upon 120 minus 1. Equation number 1. And small r equal to क्या लिखूं? Second equation, anyone can tell me? Sir, into Anyone? 18. 18 into bracket. Sir, L1 upon 150 minus 1. That's lovely answer. Equate 1 and 2. Upon 120 minus 1. 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 2 जा, 6 3 जा, 2 आणि 3,
and then इधर लिखेंगे 2 into L1 minus 120 upon 120 equal to 3 into L1 minus 150 upon 150. Okay. ये 0 0 गया कहाँ से और 3 चौक 12 3 पंजे 15. ऑल राइट. और ये 2 ऊपर है 4 नीचे है तो 2 दूनी 4. And then cross multiply. Cross multiply. तो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5L1 माइनस 12 पंजे 60 600 इक्वल टू 3 दूनी 6L1 माइनस 6 15 900. Therefore, you will get L1 equal to 900 minus 600 and therefore L1 equal to 300 centimeter यानी कि 3 मीटर. That's the answer. And then small r का formula. What is small r? कोई भी इक्वेशन यूज कर लो. कैपिटल आर समझो मैं 12 यूज करता हूँ तो L1 तो है 300, L2 है 120 माइनस 1 0 0 कैंसल 12 6 दूनी 12 6 पंजे 30 माइनस 1 that is 12 into 3 by 2. कुछ मिस्टेक तो नहीं की ना. And that is nothing but 6 into 3 and that is equal to 18 ohm. Copy this. 68 का मैं फोटो खींच के भेजूंगा. 68 will be homework which is similar to this. कॉपी कर लो. मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर से 1 सेकेंड. कितने लोगों ने फॉर्मूला बुक बनाना चालू किया? फॉर्मूला बुक कितने लोगों ने बनाया? At least one student can raise say. किसी ने बनाया नहीं फॉर्मूला बुक? उष्णा, ओ उष्णा. Sir, today college के छुट्टी ना, so I'll start today. और लेकिन तुम लेट क्यों आई? Sir, I woke up at 9, then I was like, चलो वापस सो जाते हैं ना, इसलिए अब और तक है. 9:15 को लेक्चर है, वापस हो जाते हैं. नहीं. कोनन, were you all late? कोनन कुरैशी. कोनन कुरैशी. कोनन आई नहीं है मेरे ख्याल से. वो कोनन is there or not? Just check. चलो एक बार फिर से बताता हूँ. देखो प्रॉब्लम ऐसा था, जब 12 ओम था तो बैलेंसिंग लेंथ 120 थी यानी L2 120 था. जब रेजिस्टेंस 18 ओम है तो बैलेंसिंग लेंथ 150 यानी L2 150. क्योंकि L1 तो तब आता है जब रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं होता है. तो फाइंड लेंथ व्हेन ओपन सर्किट माने L1 पूछा है, इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है. तो ये वाला फॉर्मूला पहला केस डाला 12 तो ये 120 और जब 18 तो ये 150. फिर दोनों को सॉल्व किया. सॉल्व करने का मैथमेटिकल स्टेप में बताना नहीं हूँ. L1 आया 300 सेंटीमीटर. इसकी L1 की वैल्यू किसी भी इधर ये वाला फर्स्ट वैल्यू या सेकंड वैल्यू यूज करके इसमें सब्स्टिट्यूट करो. यू विल गेट आंसर ऑफ छोटा r 18 ओम. और 68 के लिए जगह छोड़ो, मैं फोटो खींच के भेजने वाला हूँ. ऑलराइट. इसके बाद कौन सा नंबर दिया है मैंने? 67 is the easiest problem. 67. हाँ यस. G2 रीड करो. 67 G2. So the EMF of a cell is balanced by length of 120 centimeter of a potentiometer wire. When the cell is hunted by a resistance of 10 ohm,
The balance of the length is reduced by 20 centimeter. Find the internal resistance of the cell. Shunted by. What is the meaning of shunted? देखो ये लोग क्या बोलते हैं, एक पोटेंशियोमीटर वायर में एक EMF is balanced against 120 centimeter. But जब रेजिस्टेंस लगाया तो बैलेंसिंग लेंथ रिड्यूस्ड बाय 20 सेंटीमीटर. वो लोग बोलते हैं फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस. इज दिस राइट? 20 सेंटीमीटर L2 reduced by 20 centimeter. Anyone? What should I write here? 100 centimeter. That is right. To be reduced by to 120 minus 20. 100 centimeter. ये तो बहुत इजी प्रॉब्लम है, खाली फॉर्मूला आना चाहिए बस. ये रहा आंसर आपके सामने. कॉपी किया? एकदम इजी प्रॉब्लम था ये तो. इसके बाद में लिखो हिंट्स टू सॉल्व जनरल पोटेंशियोमीटर प्रॉब्लम. टाइटल लिखो हिंट्स टू सॉल्व जनरल पोटेंशियोमीटर प्रॉब्लम. फर्स्ट स्टेप इज सिग्मा which is R by L unit ohm per meter. Number 2 is I equal to E upon R plus छोटा r plus. Number 3 is potential gradient equal to sigma into I unit volt per meter. And number 4 E1 equal to PGL1, E2 equal to PGL2 and so on. ये कॉपी कर लो, मैं बताता हूँ फिर कैसे क्या है. ऐसे टाइटल लिखो हिंट्स टू सॉल्व जनरल पोटेंशियोमीटर प्रॉब्लम. ये इंटरनल रेजिस्टेंस के प्रॉब्लम थे, जनरल पोटेंशियोमीटर प्रॉब्लम. हिंट्स टू सॉल्व जनरल पोटेंशियोमीटर प्रॉब्लम्स. Alok Gupta, you are copying or not? Alok? Alok Yes, Gupta? sir. Yes, sir. Conan Qureshi has come or no to the scene? Vidhi नहीं. Ushna, Conan आई कि नहीं? उष्णा शेख? No, sir. फोन मारा उसको? I did not call. जरा कॉल करना. Okay. Now I would like इसके बाद क्या प्रॉब्लम नंबर क्या दिया है? Is it which one प्रॉब्लम नंबर बेटा? जीतू? So 57 का नेक्स्ट प्रॉब्लम कैसे? हाँ? 56. 56 सीधा. हाँ सर. Okay, read. हाँ पहले सुनो ये प्रॉब्लम, ये हिंट्स क्या है? 4 हिंट क्या है? सुनो, I am going to ask you. देखो, almost in all problem compulsorily capital R दिया होगा. What is capital R? You know, resistance of potentiometer wire. ये L दिया होगा. That will be length of the potentiometer wire. जैसे R और L दिया हो, R upon L sigma. R is ohm, L is meter, ohm per meter. Then current we know is E upon, ये हमको पहले से मालूम है. लेकिन प्लस एक्स क्यों लिखा? कभी कभी कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ऐड करते हैं. अगर दिया होगा तो एक्स लिखो, नहीं तो भूल जाओ. ये भी स्मॉलर दिया होगा तो लिखो, नहीं तो भूल जाओ.
ऑलराइट, लेकिन ये तो कंपलसरी होगा ही होगा। R और X शायद हो या नहीं हो, X यानी some external more resistance other than resistance of potentiometer by. Then potential gradient is nothing but 1 into 2 sigma into I, which is nothing but potential gradient is solve of potential per unit length in a volt per meter. And then fourth is E1 equal to PGL1 equal to PGL2 and so on. Alright, तो ये बेसिस के ऊपर हम लोग फटाफट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. हम लोग जीतू विल रीड नंबर 56. जीतू Yes, sir. नंबर 56 पढ़ो. Potentiometer wire has a length of 1.5 meter with a resistance of 10 ohm. It is connected in series with the cell of EMF 4 volt and internal resistance 5 ohm. Calculate the potential drop per centimeter of the wire. कॉपी करो डेटा, फिर मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है. What is potential drop यानी क्या per centimeter? Anybody can tell me what they mean by potential drop per centimeter यानी क्या पूछा है यहाँ से चारों पॉइंट में से? Anyone? Anyone who can say, sir, this is what they asked, potential drop per centimeter यानी क्या पूछा है? That means they have asked potential gradient in volt per centimeter, not volt per meter, but it is volt per centimeter. लास्ट में volt per centimeter करना कंपलसरी है. तो प्रॉब्लम समझो. प्रॉब्लम में कुछ ऐसा एक था पोटेंशियोमीटर वायर, उसकी लेंथ और रेजिस्टेंस दी हुई है, ईएमएफ ऑफ द सेल दिया है और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है. वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट इन वोल्ट पर सेंटीमीटर. भागेश प्रॉब्लम बता. भागेश एक प्रॉब्लम है. एक पोटेंशियोमीटर वायर है, उसका लेंथ 1.5 मीटर है, रेजिस्टेंस 10 ओम और वो सीरीज कनेक्टेड है. उसका सेल ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम है. तो हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट इन वोल्ट पर सेंटीमीटर फाइंड करना है. ब्यूटीफुल. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? कैन यू सी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सिग्मा इक्वल टू r by l, तो 10 upon 1.5 ohm per centimeter, ohm per meter. Number 2, what is I equal to? E upon r plus छोटा r plus x. E कितना दिया है? 4. बड़ा r कितना दिया है? 10. छोटा r कितना दिया है? 5. x कितना दिया है? 0. That means 4 upon 15 एम्पियर. Number 3, potential gradient, which is nothing but equal to sigma into I. Sigma is 10 upon 1.5 into 4 upon 15. 5 दूनी 10, 5 3 को 15, 4 दूनी 8, 8 upon 4.5. अगर ये 9 होता तो आंसर होता 2. 8 है इसलिए आंसर विल बी लेस देन 2. In fact, it will be 1.777 volt per meter. But they have asked volt per centimeter. So this we can say 1.777 volt. अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, कौन बताएगा मुझे? Let me ask March Sheikh. 1 meter is how many centimeter? March Sheikh. ओ माज, मुर्तजा, सब सो गए क्या वापस? आलोक गुप्ता, So 100, हुसैन गाजीला, 100, 1 so meter is 100. 100 centimeter. That is right, 100 centimeter, and that is equal to 1.777 into 10 raised to minus 2 volt per centimeter. That's the answer. सर फर्स्ट वाला सिग्मा को और वो नहीं करने का सॉल्व.
10/1.5 अरे जरूरत नहीं है, अगर वो लोग ने सिग्मा पूछा होता फाइंड तो फिर इसकी वैल्यू निकालते, क्या जरूरत है बिना बात कैलकुलेशन करना, इसको भी क्या जरूरत है कैलकुलेशन करना, अपने को जो चाहिए वो निकालने का, कैलकुलेशन एक ही बार कर देगा, बार बार इसको कैलकुलेशन क्यों कर करके टाइम वेस्ट करने का। दैट्स अ गुड क्वेश्चन, नो नीड टू डू दैट कैलकुलेशन बिकॉज दैट इज नॉट बीन आस्क्ड। I hope that's clear. Conan, why you came late? Conan Qureshi. Conan. Yes, Conan, sir. are you there? कि सो गई वापस चालू करके? No, sir. अच्छा क्यों लेट आई? Sir, रोजा है. रोजा है तो क्या हुआ? अल्लाह ये नहीं बोलते रोजा रख के तुम लोग अपने काम में ढील दो, डॉक्टर बनोगी और पेशेंट मर जाएगा उसके बाद पहुंचोगी तो क्या फायदा है? उसको जाके बोलोगी मेरा रोजा था इसलिए मैं लेट आई, तो डॉक्टर कैसे बनोगी फिर? अफीफ का भी रोजा होगा, अफीफ आया, सब लोग आए, काफी लोग हैं, बाज आया, मुर्तजा आया, हुसैन आया। आई डोंट लाइक दिस। देखो सबसे पहले सिग्मा आर बाय एल, आर अपॉन एल, आई ई अपॉन आर प्लस आर, ई 4 था, आर और आर दिया, एच दिया ही नहीं तो 4/15। रीड्यूस दिस इनटू दिस, इसको सॉल्व किया, ये पहले वोल्ट पर मीटर आएगा आंसर, बट दे आस्क वोल्ट पर सेंटीमीटर, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, ऊपर लिख लिया। ऑलराइट, इसके बाद जीतू कौन सा प्रॉब्लम क्या है? जीतू, Yes, sir. इसके बाद का प्रॉब्लम नंबर क्या है? So इसके बाद का सर 58. 58 ना? यस, तो रीड इसके बाद 56 मैंने क्या 55 एंड 54 यू विल डू एज होमवर्क। एंड कौन सा बोला तुमने? 50 58. 58 रीड करो। The resistance of a potentiometer wire is 8 ohm and its length is 8 meter. Resistance box and the 2-volt battery are connected in series with it. What should be the resistance in the box if it is reserved to have a potential drop of 1 microvolt per millimeter। 1 microvolt per millimeter? यहाँ पे कोई मुझे बताएगा क्या पूछा है? आई एम कीपिंग इट ब्लैंक लेफ्ट हैंड साइड। देखो प्रॉब्लम बता रहा हूँ, एक था पोटेंशियोमीटर वायर, उसका रेजिस्टेंस और लेंथ और ईएमएफ दिया हुआ है, वो लोग बोलते हैं व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन द बॉक्स so that potential gradient becomes this much. So anybody can tell me what they are asking? Please note resistance दिया हुआ है, still they are asking some resistance, so what is that? Anyone from this data can tell me? सर ये लिखना है आपको, सिग्मा तो आ गया, सिग्मा इज आर बाय एल, यानी कि 1 ओम पर मीटर, ये लो सिग्मा खत्म, तो सिग्मा ये सब क्या कर रही है? एनीवन, व्हाट रेजिस्टेंस बॉक्स शुड बी कनेक्टेड? Sir, is it X I is equals to E? That's the answer. That's the answer, Afif. Afif, lovely answer. How are you now, health? Yes, I'm fine. You are improving or? Yes, I'm little improving. down? Okay, good, good. Take care of yourself. And number 2, and your parents too. I equal to E upon R plus छोटा r plus x. E कितना दिया है? 2. कैपिटल R 8 plus 0 plus x, यानी कि 2 upon 8 plus x. हाँ, इधर है ना, माइक्रोवोल्ट पर मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करना चाहिए पहले बताओ मुझे। व्हाट इज द एसआई यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट का? ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा? व्हाट इज द एसआई यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट का? Is it volt per meter? ये लिखा ही है यहाँ पे वोल्ट पर मीटर, बट ये लोग ने दिया क्या हमको? ये लोग ने दिया माइक्रोवोल्ट पर मिलीमीटर, तो माइक्रोवोल्ट मींस 10⁻⁻6 वोल्ट, मिलीमीटर यानी 10⁻³ मीटर। तो ये ऊपर आएगा तो दिस विल बिकम 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। ये जरा कन्वर्जन कर लो, ये ऐसा यूनिट में होना चाहिए। एंड नंबर 3 पीजी
इक्वल टू सिग्मा है। पीजी के बदले क्या लिखूं? पीजी के बदले क्या लिखूं? Sir, 10 raised to minus 3. 10 raised to minus 3 is the right answer, but only one student is 1 into what is I? 2 upon 8 plus x. So 8 plus x यहाँ पे है और therefore 1 upon 1000. Therefore 8 plus x equal to 2000. And therefore x equal to 1992 ohm. एकदम इजी है ना प्रॉब्लम? ये वाले स्टेप फॉलो करना, आपको बहुत इजी लगेंगे, फिर प्रॉब्लम सब आसान लगेंगे। देखो एक बार फिर से, सबसे पहले आर और एल दिया तो सिग्मा निकाला, आर बाय 8/8 दैट इज इक्वल टू 1 ऊपर मीटर, आई ई अपॉन आर प्लस एक्स। ई कितना दिया? 2। कैपिटल कितना दिया? 8। छोटा दिया ही नहीं था तो 0। एक्स तो पूछा गया हमसे, तो दैट इज 2 अपॉन 8 प्लस एक्स। व्हाट इज पीजी? सिग्मा इनटू आई। पीजी कितना दिया है? 10 टू -3, क्योंकि हमने कन्वर्ट किया माइक्रो वोल्ट तो पहले वोल्ट, मिलीमीटर को मीटर और फिर लास्ट में। तो 10 टू -3 इक्वल टू 1 into 2 upon 8 plus x. 10 to -3 is 1 upon 1000. So 2000 equal to 8 plus x. So x will be 1992 ohm. That is the answer. I hope that is clear. सभी को पता चला कि नहीं? कंपलसरी फॉर्मूला बुक बनाना है, आज से सबको कंपलसरी बनाना है, छुट्टी है, कॉलेज भी बंद है, एवरीथिंग इज सो। जैसे ही लेक्चर खत्म होगा, स्टार्ट मेकिंग द फॉर्मूला बुक एवरी वन ऑफ यू। खाली मेरे फॉर्मूले नहीं, इवन वीएन मिस ने जो सिखाया वो उसके भी चैप्टर के फॉर्मूले लिखना चालू करो। थिंग्स विल बिकम, व्हेन यू राइट इन योर ओन हैंडराइटिंग, देन इट बिकम्स ब्यूटीफुल। जो जो आपने समझा है, जहां जहां लिखा है, उसका फॉर्मूले बनाओ, उसको समराइज करो, उसको लर्न करो। और मुझे डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले चाहिए, जिन्होंने मैथ्स लिया है नहीं लिया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, एवरीवन हैज टू लर्न बाय हार्ट। जैसे मैं पूछता हूं अभी, इसको विधि, आर यू देयर? विधि भट्ट, विधि भट्ट। आई एम देयर। sec x का डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव ऑफ sec x? So sec x into tan x. That's right answer. That's right answer. What is derivative of tan x? Let me ask Hussein Dagina, tan x derivative. Derivative of tan x. Hussein Dagina. This is what I don't like. Afif, tan x derivative. Yes. सारे फॉर्मूले लर्न बाय हार्ट करने हैं। ओके, इसके बाद का प्रॉब्लम कौन सा है? G2 Yes, sir. Yes, sir. कौन सा? Sir, 59. 59 रीड करो। हमारे पास समय की हाँ, बहुत कमी है, लेस देन 1 मिनट नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या चाह रहा था आपसे कि प्लीज स्टार्ट वर्किंग हार्ड, मेक यूज ऑफ दिस वेकेशन। ये जो टाइम मिला है जिसमें बाहर जाना अलाउड नहीं है, एवरीथिंग यू नो, पुट योर एंटायर एफर्ट, कंप्लीट एफर्ट इनटू स्टडीज। मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ, ऐसे फॉर्मूले बनाओ, लर्न करो, यू थिंक अबाउट एवरी, जो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया उसको वापस से एक बार सॉल्व करके देखो, बंद करके आता है कि नहीं आता है। मैथ्स की लॉट ऑफ